Farming. India is a farm-based country, we all know. Our economy actually started from farming. That was our primary, trades or things in the ancient ways, and that's how we grew up. Today, even more than 60% of our populations, that depends upon farming. So we would like to, I think, reiterate that issue about farming, that government policy for farmers and land. Around 60% of the people indirectly or directly depend upon the agriculture of India. Majority of India's economy depends on agricultural sector. What government policies can improve the agricultural system in India? What can be done to prevent suicides of the farmers, control the crop pricing, means inflation of the food products, and provide subsidies to the farmers? What can your government do to raise the crop growth and prevent the selling of farming land for industrialization? We all know that. The farming land price, I think, inflated a lot in the last few years, we all know. So now that could have a direct impact on farmings and the farmers. So the questions, I think we start with the Aam Aadmi Party, please. Start now. Question is, what government policies can improve the agriculture system in India? सबसे पहले इसके लिए हमको याद करना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्गों ने स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। पिछले 40 साल में सब पॉलिटिशियन जवान को भी भूल गए, किसान को भी भूल गए। तो सबसे पहले अभी एक ही हो रहा है एनकरेजमेंट कि जमीन बेच दो, वहां पे बिल्डिंग बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, रोड बनाएंगे। तो किसानों को कुछ भी एजुकेशन दिए बगैर, लोन प्रोसेस बहुत ही बिल्कुल एजुकेट किए बगैर उनको लूटा जा रहा है, उनसे जमीनें छीनी जा रही है। सो लैंड एक्विजिशन हैज टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, द कंपेंसेशन हैज टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव। और जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, दुनिया जानती है कि पिछले 15-20 साल से एग्रीकल्चर कौन संभाल रहा है। तो उसमें फूड ग्रेन्स खराब हो रहे हैं, उसमें से नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से फार्मर्स लोग लोन ले गए कि दे आर नॉट एबल टू रीपे इट। सो दोज आर द मेन इश्यूज विल बी हैंडलिंग। I want to add something here. Actually, we have to educate farmers about how they can, handle the loans. There's a lot of corruption into the loan system in India. So we have to educate farmers about how they can take loans. And I want to mention that we have few candidates like Yogesh Dahiya from UP. He has been a social activist for farmers since last so many years, and we have we have introduced these candidates so that they can raise their voice for farmers. And also we want to mention, like, we want to remove the land corruption from India. Like in Haryana, there has been so much corruption. They took the land from farmers for cheap deals, and then they gave the land to big businessmen where they are making big buildings and selling. So we have to introduce proper laws. We want to have proper people into the system who can teach farmers. 30 seconds. एक अपने फार्मिंग इतना बड़ा अपना बिजनेस है, बट ऑल द ग्रेन वी हैव स्टोर्ड इज गोइंग वेस्टेड, नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली। तो उसका कोई बेनिफिट किसी को भी नहीं मिलता है इंडिया में, और उसके लिए न तो गवर्नमेंट कुछ करती है, न ऑफिसर्स कुछ करते हैं, कुछ भी उसका प्रोसेस डिफाइन नहीं होता है। Sorry, the time is up. You get a chance for the next. The time starts now for the BJP, Bharatiya Janata Party. So farming and industrial goes hand to hand. Let me give you the government of Gujarat what they have done. Even in Nadiad, Anand, Baroda, and I love to travel into those areas where the farmers are millionaires. Why? Because they know how to do the farming in a recent years in an adhunic way. They have brought the system from Israel, and even in the village you see the drop system where the wastage of the water has been all totally stopped, and doing the farming in a way that should be done, rather than old system we had, just do the peanuts business and that's about it. Now farming are growing in such a way that people are getting much more richer. Also
the land acquisitions. I think the government of Gujarat have shown how it can be done, buying the land from the farming at the market price and giving to the industrialists who can grow the land in such a way, the businesses, so the people can get the education, people can get the employment, and whole Gujarat can grow. And you have the example in front of you how they have done, and that can be done in a national level also. Thank you. सॉरी, मध्य प्रदेश में जो कृषि का उत्पादन है वो देश में सबसे अधिक है और मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इट हैज बीन प्रेज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इवन। गुजरात का अभी हमारे मित्र ने बताया ही है। तो जो विशेष विचार रहता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि से संबंधित जितने भी आवश्यकताएं हैं, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स, आज भारत में जिसको बोलते पिंक का रेवोल्यूशन होता है, वी आर स्लॉटरिंग द यूजफुल एनिमल्स, वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग देम। तो हमारी जो नीतियां हैं भारत सरकार की, उसका जो प्रभाव है कृषि के ऊपर, उसके कारण ये सब कठिनाइयां पैदा होती है। तो विशेषकर जो भारत में यदि कृषि को हमें बढ़ाना है तो उसके लिए हमारा जो जिसको बोलते हैं दिशा रहती है, वो इट शुड बी द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड टू द फील्ड, नॉट सिंपली सिटिंग इन द ऑफिस। तो गुजरात में दैट हैज बीन डन। जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है वो किसानों को ज्ञान बताता है कैसी फार्मिंग किस प्रकार से करनी है या कौन सा। Time is up, so you get the chance. Now the time starts from Congress now. सूद साहब और डॉक्टर बदूक साहब, इनकी सुई सिर्फ मोदी जी के ऊपर और गुजरात के ऊपर अटक जा रही है। अब बात करें, हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, तो नेशनल लेवल के ऊपर सब्जेक्ट डिस्कस होना चाहिए। नेशनल लेवल के अंदर भूमि अधिग्रहण लॉ जो है वो कांग्रेस सरकार लेके आई। मैं आपको बताना चाहता हूं भूमि अधिग्रहण लॉ क्या है। उसके अंदर किसान की कोई भी जमीन लेगा उसको 4 गुना ज्यादा मार्केट वैल्यू से किसान को पैसा देना पड़ेगा। ये भूमि अधिग्रहण लॉ है। वो इसलिए करा कि कोई भी आम आदमी जाके किसान की खेती की जमीन कब्जा ना करे, खरीदे ना, क्योंकि किसान को पैसे की हमेशा जरूरत होती है। उसी के साथ साथ फूड बिल कांग्रेस लेके आई। फूड बिल जो एक्सेसिव, जो बता रहे हैं आम आदमी पार्टी हमारे पास एक्सेसिव ग्रेन होता है, ये गरीब जनता के लिए है। तो ये सारे प्रोग्रेस के प्लान्स और इतने अच्छे अच्छे प्लानिंग्स कांग्रेस पार्टी लेके आई देश की जनता के लिए, हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम किस तरह से हमारी सोच है और कांग्रेस की क्या सोच है अपनी कंट्री के लिए और किसानों के लिए। अब आप गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में 5,500 आदमियों ने सुसाइड करा किसानों ने पिछले 10 सालों में। ये बात भूल जाते हैं। गुजरात की सारी कृषि की जमीन अदानी ग्रुप को मोदी जी ने दे दी। उसके बाद नैनो के लिए जो कार बनी है उसके लिए सरकार ने 900 रुपए पर स्क्वायर फुट में जगह दे दी, जबकि उसकी कॉस्ट 1400 रुपए थी। तो ये सारी चीजें इसको भी आप लेके आई। सच्चाई जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता को पता होना चाहिए कि कौन सी सरकार देश हित के लिए और जनहित के लिए काम कर रही है। और मेरे ख्याल से कांग्रेस ने जो सरकार अभी तक हमारे देश को दिया वो कमांडेबल है और कांग्रेस अपने हिसाब से चलती जा रही है किसानों के जनहित के लिए। मध्य प्रदेश की आप बात करते हैं, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान, मैं मध्य प्रदेश का हूं, मैंने देखा, मेरी भी खेती है, जिस तरह से किसान वहां पे काम करते हैं। अभी जब पाला आया तो किसानों को पैसा नहीं मिला, सरकार सब पैसा खा गई। शिवराज सिंह चौहान, गरीब किसान बेचारा मर गया, बैंक का लोन नहीं दे पा रहा। और इन्होंने फेडरल से जो कांग्रेस सरकार ने पैसा दिया स्टेट को, पूरा पैसा खा गया, किसानों को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें जनता तक आना चाहिए, सच्चाई जनता तक पहुंचना चाहिए, झूठ अब खत्म होना चाहिए। देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश को क्या दिया और क्या आगे देगी। हमारा मैनिफेस्टो आप देख लें किसानों के लिए। Time is up, so you can have a time for the. Let's give the hand for 4th round. It's excellent. It's warming up. So we have reached up to almost like 40%. As per yesterday's New York Times, the security. Home Affairs has mobilized some 200,000 security personnel for the India election. The American news media, they are so much interested in India election, and they have given this data
More than 200 security personnel, they are taking care of the election. 25,000 each state police in each state, they are taking care of the election. 240,000 different election officials from the election commission, they are serving this election. So imagine how big force from it's a very big task to control the election in India, because it's the world largest election happening on earth today. So let's move on to the fifth question, very hot question, and it's been going on since we got the independence. It's about the black money. Most black money from India or Indian origin or politicians or you name it, their money is outside India. What you can do or your government can do the reform, the foreign trade policy and bringing the black money back home. The question goes to Bharatiya Janata Party. The time starts now. जो ब्लैक मनी, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो का पहला ये शब्द है कि वी आर कमिटेड टू ब्रिंग दैट ब्लैक मनी टू इंडिया। जिन लोगों ने भारत के बाहर काले धन का जमा किया है, पिछले 60 वर्षों के कांग्रेस के शासनकाल में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अधिकांश लोगों का धन भारत के बाहर जमा है। उनको इस प्रकार की सुविधा देने का, जिसको बोलते हैं, कारण क्या हुआ, वो ऐसा क्यों कर सके। और आज भी जब बाबा रामदेव ने इस विषय के लिए जिसको बोलते हैं एजुटेशन शुरू किया, तो उसको बोलते हैं बजाय उनके साथ खड़े होने के विपरीत कांग्रेस ने इनके ऊपर एक्शन लिया। तो कांग्रेस का उद्देश्य काले धन को भारत में वापस नहीं लाना है। 99% लोग काले धन जमा करते हैं। कांग्रेस के लिए जिसको बोलते हैं जो राजनीति है एक व्यवसाय है, और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए जो काम करने वाले कार्यकर्ता है वो जीवन समर्पित कार्यकर्ता है। ऐसे कार्यकर्ता जो चाय बेचते हैं और उनको वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाते हैं। तो विशेष विचार ये करना चाहिए कि इसको करते दोनों पार्टियों में क्या अंतर है। एक पार्टी राष्ट्र समर्पित है, देश समर्पित है, उसको लगता है कि गरीब व्यक्ति है उसका उत्कर्ष होना चाहिए। दूसरी पार्टी वो है जिसने करोड़ों अरबों रुपए का धन भारत के बाहर जमा किया है। उनको जो सबसे बड़े नेता है जो इस देश को चलाने वाले हैं, उनका भी धन भारत के बाहर है। तो ऐसे सब लोगों का धन भारत में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कानून बनाएगी और उन सबको कंपल करेगी कि वो देश के बाहर जमा धन है वो भारत में लाए, जिस भारत का उत्कर्ष हो सके और भारत के जीवन में रहने वाले गरीबी का उस पर निवारण हो सके। To add into what my colleague said very correctly, the unfortunate part for the India is the black money overseas. So many people from India, whether it's business people or the politicians, have tons of money lying outside. Even at 20% of the money, according to the media, it comes back to India, the entire poverty will be wiped out of the India, entire poverty. Not only that, each and every village will have a school, education and a college that can give the growth the Indian people need and the education the poor people need. The manifesto that BJP have given, it strikes each and every politician. The time is up, so you have still time. The time starts now to Aam Aadmi Party. Congress, sorry, then Aam Aadmi. Yeah, here you go. All of you can tell me very easily who is the biggest crusader, anti-corruption crusader in India in recent history. Anybody can tell it's Mr. Anna Hazare, isn't that right? Anna Hazare, who was fighting against corruption, who did he praise? Not Narendra Bhai, not Kejriwal. After the Lokpal bill was passed, he thanked Rahul Gandhi. So that speaks volumes about what Rahul Gandhi, our leader, stands for, what Congress Party stands for. You hear about all these corruption cases, first time in the history, so many. Why? Because of our party passed the Right to Information Bill. This is the historic bill that opened all the books of the government and brought transparency. No other party did that. No other state did that. Gujarat, the model they are talking about, took the longest time in the country to appoint a Lokpal. They rather resisted. Supreme Court had to intervene. If they are so honest
so much of anti-corruption, why would they resisting even Lokpal? The Lokpal resigned in frustration. So, facts speak louder. They provide so much misinformation, just like our friend said, BCCI is run by government. That's a joke. BCCI is an independent body. Even Mr. Jaitley, their own leader, is the Delhi Cricket Control Board chief. So he's the vice president. So it's not run by government. Just like my friends in Aam Aadmi Party talked about Haryana. Mr. Bhupinder Singh Hooda, our chairman of Haryana, Mr. Budh Prakash Singh is here. He will certify that he is a farmer himself, the chief minister. There's not even one case, one protest ever in Haryana by farmers that their land has been grabbed. Why? Because Haryana was the leading state to implement the newest system where they not only gave more money than the current value to the farmers, but they also set up an annuity system that they will keep getting money every year from the people who took the land. Not like Gujarat, where Adanis are given land of whole of Mumbai area coastline for peanuts. Okay. So I want to give to my Anil ji for next 30 seconds. Yeah, Sudh Prakash, no, it's done. Time is done. 2.5, you took more time. So you get a second round. So before I go to the last panelist, I request those who are standing or back there, please have a seat. And if you just listen to this, because you have a golden chance to ask, and this will air to TV9 in India and America. So if you have a little knowledge about what they are speaking to, you get a best chance to ask the question. So once the TV9 is ready, the time starts now for Aam Aadmi Party. Actually, this black money issue is like, even if you bring it back from the Swiss or some other places, again it will go back to the Swiss bank, because where you don't have the system, again you are going to do the corruption and things like that. That's why we wanted to set up the system. We call it Jan Lokpal. It's a strong watchdog concept across the world. There are so many successful models available, and we want to implement it, but it somehow this system couldn't able to really implement somehow. The biggest problem with the kind of setup the Congress people and the BJP is proposing is like, again, is a compromised Lokpal. They don't want to really give the independence to such kind of organization who can go ahead and really actually check this kind of corruption to that institutionalized level, and we can say, no, stop it to sending it back. So that is one of the things that has to be done if you want really to see the major change, visible change in India. अच्छा, एक्चुअली ये थोड़ा नाइंसाफी हो गई कि ब्लैक मनी के बारे में आई थिंक पूरा टाइम हमको मिलना चाहिए था बोलने के लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक कांग्रेस बीजेपी हैज एनी राइट टू स्पीक ऑन ब्लैक मनी. सबसे पहले कि ब्लैक मनी का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्विस गवर्नमेंट ने दे दिया है कांग्रेस को. व्हाई दे आर नॉट रिवीलिंग? क्यों हमको पता नहीं है कितना पैसा कहाँ आया, किसका आया, कितना आया? वी डोंट नो. दे हैव ऑलरेडी रिवील. अमेरिका ने रिकवर किया, इंडिया क्यों नहीं कर सकता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 1948 से हमको मिलना चाहिए था. ब्रिटिशरों ने प्रोहिबिशन लगाया था 1948 से, अब तक क्यों नहीं मिला? वी हैड टू फाइट सो लॉन्ग टू गेट आरटीआई. आरटीआई का क्रेडिट मत लीजिए प्लीज, डोंट इंसल्ट अस. आरटीआई का क्रेडिट यू शुड हैव गिवन आरटीआई द डे वी गॉट द फ्रीडम, नॉट आफ्टर पीपल गो हंगर स्ट्राइक एंड ऑल दैट. हमारे कांग्रेस के दोस्त ने भूमि अधिकरण लॉ की बात की थी, तो मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगा. हरियाणा में भूमि अधिकरण लॉ आया और रॉबर्ट वाड्रा जो है वो बिलियनियर बन गए हैं. अगर आपको पता हो तो पता होना चाहिए. और दूसरी बात है, एक्सेसिव ग्रेन्स का इन्होंने मेंशन किया था. शरद पवार जी के वहाँ ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में. एक्सेसिव ग्रेन्स होते थे, हर साल ग्रेन्स खराब होते थे और बियर की फैक्ट्रियों को बेचे जाते थे वो ग्रेन्स. यहाँ से ये लोग पैसा कमाते और बात करते एक्सेसिव ग्रेन्स की. और महाराष्ट्र में भी नंबर ऑफ सुसाइड्स कम नहीं हुई है, बहुत ज्यादा सुसाइड्स हुई हैं महाराष्ट्र में. नंबर बोलिए. ये जो ब्लैक मनी है वो वापस आता है, यूज कहाँ होता है? इलेक्शन में. अभी बोला $5 बिलियन. किसी को कांग्रेस बीजेपी किसी को रिवील नहीं करना है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, who is funding them. तो ब्लैक मनी वापस sorry, the 30 seconds is up. So let's give big hand. We have reached on the halfway. We are going to have another 5 questions as warming up a little bit. Now the God has done a favor today, and also they have done a favor to warm it up. So it's good now. It's the heat. We feel the heat today. So
Before I give this microphone for the sixth question, bring the Viru Patel, I would like to point out that we are entering into the, out of 9 phases, we are entering into the 5th phase of the election. And it is on the 16th Lok Sabha election. We have 543 constituencies. And we need 272 MPs in order to form a government. So here's the 6th question, Viru Patel. Thank you one more time. This question is about the foreign policy. India's current policy, what we have it, or what we had in the past, and what we are going to do in the future. So the question goes to the Congress party. We'll start from there and we'll go around that way. In the past, India and China were the leading partners in global economy. I mean, they were like parallel, you know. Lately, we have seen India is kind of like lagging behind. What needs to be done for India to establish itself as a global partner in the business sector and foreign policy sector among its global competitors? So this is mainly about the foreign policy. Let's start with Congress. So thank you, Viru. First of all, I agree, India and China were leading in economic growth. The fundamental difference between China's growth and India's growth, China's growth was due to manufacturing. All over the world were sending their manufacturing to China, where India's growth was intellectual service growth. We were doing every intellectual task that other countries were sending to us. What Congress Party has pledged in Manifesto of 2014, that the saturation of the service sector is there, and that's why we are slowing down in our economic growth. So the next step is to let's capture the manufacturing growth which China is doing, that we will do. So what Congress Party has promised in manifesto, that we will create a more than 100,000 economic growth sectors within India, which will produce the local manufacturing sector and bring them up and bring the jobs from the overseas to India and make India as a manufacturer economic growth engine rather than the service growth engine. I would like to point out to the couple of questions that these people have raised. The health sector, which Gujarat model, Gujarat is 34th. The one time somebody had asked question why the women lack the health in Gujarat. They said they all हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बोला कि हमारी सब बहनें डाइट पर है. वो डाइट पर नहीं है, उसका जो ग्रोथ है वो सबसे पीछे है, उसका जो स्पेंडिंग है सोशल वेलफेयर में ये सबसे कम है. और मैं सब बताता हूँ कि भूमि अधिग्रहण की बात आपने की, तो आप जाओ गुजरात मॉडल में 50 पैसे स्क्वायर फुट जमीन अदानी को दे गई, और वही जमीन 1500 रुपीज में गवर्नमेंट को वापस बेच के अदानी बिलियनर हो गया. रॉबर्ट वाड्रा बिलियनर नहीं हुआ, अदानी बिलियनर हो गया. थैंक यू. Yeah, the question is about foreign policy. I tell you, the last 10 years were not only the most successful foreign policy. Sorry, you get the second chance because it was 30 seconds. So the question goes to Aam Aadmi Party. Time starts. Meanwhile, एक नारा लगा दें, जय हिंद का, जय हिंद. We'll do it later on. The time starts now. Foreign policy, basically, none of the outside country taking us seriously. One of the big reason is because our system is not efficient enough. We have a lot of corruption. So everybody is scared about dealing with us, and they are not taking seriously. Due to that reason, nobody is asking us as a global partner. We are always with the second level partner. आई थिंक कि फॉरेन पॉलिसी बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है. अरे अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा थोड़ी करते हैं, उसके साथ प्यार से रहते हैं और एक कॉमन ग्राउंड पे हम उसके साथ डील करते हैं. प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर में इतना करप्शन है, सब लोग आपस में झगड़ा करते रहे, कोई हिंदू मुस्लिम, कोई ऊपर कास्ट नीचे कास्ट, कोई ये वो बन जाता है. तो हमारे घर से कोई क्यों डील करेगा? पहले अपना घर ठीक करो और कॉमन स्टैंडिंग उनके साथ काम करो. बड़ा सिंपल पॉलिसी है.
इस बात पे मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अभी तक जो आम आदमी देख रहा है इंडिया का, बीजेपी का सूडो नेशनलिज्म और कांग्रेस का सूडो सेक्युलरिज्म, ये हमारे देश को खाया जा रहा है। तो फॉरेन पॉलिसी जब होता है तो फॉरेन पॉलिसी में आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, जिसमें आपको अपनी चीजें नहीं खोनी है पर अपनी स्टैंडिंग भी रखनी है। डिसीजन फास्ट लेना है। लोकल सप्लायर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस में, उनको इन्वॉल्व करना है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट को आपको बड़ा करना है ताकि वो पैसा आप खाते जाए। तो फॉरेन पॉलिसी हमारे मैनिफेस्टो में सिंपल सी है, पड़ोसियों के साथ प्यार भाव से रहो लेकिन अपना स्वाभिमान मत खो। और ये सूडो नेशनलिज्म और सूडो सेकुलरिज्म से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है इशू। They're done with the answer. Can we take their They don't have the answer. Okay, so foreign policies are very simple. Don't make it complicated. So it's a mini statement. We good with the neighbor. That's a simple foreign policy. Yeah, thank you. The last panelist is Bharatiya Janata Party. Starts now. भारत की जो विदेश नीति है उसका एक ही आधार है, भारत के हितों की रक्षा, इंडिया फर्स्ट। इस विचार से काम करने वाले जो लोगों का जो मत रहता है वो अपने पड़ोसियों के साथ भी उसी उद्देश्य से संबंध बनाते हैं। अभी कांग्रेस के 10 वर्षों के शासन में वी आर नॉट एबल टू कीप ए हेल्दी रिलेशन विद श्रीलंका। पाकिस्तान के लोग आते हैं, हमारे जवानों का सिर काट देते हैं और हम जिसको बोलते हैं अपना संधि पत्र लेकर उनके पास पहुंचते हैं। हमारा स्वाभिमान जिसको बोलते हैं गर्त में चला गया है, गड्ढे में चला गया है। देश की दुनिया के अंदर कोई सम्मान नहीं है। हमारी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी का आधार हमारा ये है, जैसे है कि गेहूं हमारे पास पैदा होता हो और हम किसी को बाहर भेजे, चपाती बनाकर भेजो। इंडिया और इंडिया में पैदा होता है, हम बाहर बेचकर स्टील वापस मंगाते हैं। तो हमारी इकोनॉमी जो है उसको हमने प्रॉपरली सोचा ही नहीं है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। भारत के हितों के निमित्त काम करने का जो विचार है, जो उद्देश्य है, ऐसा जिसको बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के लोगों के मन में है ही नहीं। केवल एक ही उद्देश्य है, किसी प्रकार से करप्शन करना, 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, जितने स्कैम आप देखिए, केवल तरीका है कि पैसा इकट्ठा करना। अभी बंसल साहब के केस में जिसको बोलते हैं करप्शन का केस आया, आज उनको टिकट दे दिया वहां से। तो ऐसे लोगों की जो सरकार है, जिन्होंने देश को लूट कर खाया है, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी? भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल श्रेष्ठ है, इंडिया फर्स्ट। और इसी आधार के ऊपर सारे विचार जिसको बोलते हैं निहित है। और सभी देशों के साथ प्रेम के संबंध हो। ठीक कहा, पड़ोसी के साथ मित्रता चाहिए पर स्वाभिमान के आधार पर। यदि कोई हमारे स्वाभिमान को आहत करता है, जिसको बोलते हैं नुकसान पहुंचाता है, तो हमको भी उसी भाषा में जवाब देना होता है। इस दृष्टि से काम करने वाली जो पार्टी है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। Let me add into the last part of the question, what needs to be done? Very simple. Wait for a month and you will see who gets into the CM and you will see the results, what needs to be done. Thank you. CM ठीक है, PM नहीं है, PM ठीक है। Wait for 30 days and you will see the PM and then the policy will change. PM तक हिसाब किताब That's why I call heat up. Okay, the time is up. Let's give a big round of applause for 6th round. So we are entering into the 7th round. That's heating up now. The corruption, the most cancerous, what do you call, in India, in the blood, it's called corruption. How can the government, or particularly your government, reform the current judicial system to control or eliminate the corruption present today, especially on a very higher level? It's called white collar corruption. How you can control it if your government comes? Time start now. एक तो 2-3 तरह के करप्शन है। एक तो इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है जो टॉप लेवल पे चलता रहा है, उसका तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब कोई सिस्टम वगैरह डेवलप करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग वॉचडॉग, जन लोकपाल बनाना पड़ेगा। एक दो चीज़ जो हम बहुत स्ट्रांगली करना चाहते हैं, लेट्स से कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे आपको क्या क्या रहते हैं, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, आप पढ़ते हैं, लोकल पुलिस से बात करते हैं, लेकिन वो सब के सब कॉम्प्रोमाइज होते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करें, तो बड़ा हर्ट होता है उस टाइम। तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा है स्वराज मॉडल
मॉडल हम लेके आ रहे हैं उसमें ये रहता है कि आपकी जो लोकल बॉडीज है वो डिफाइन करेगी कि भाई ये स्कूल है तो हमारे सारे बच्चे इसमें जा सकते हैं, इसके लिए कोई मिनिस्टर का नहीं लगेगा। एक सड़क बनाना है तो हम डिसाइड कर सकते हैं हम सड़क बनाएंगे। इस तरह से जो आपकी रेगुलर लेवल पे जो करप्शन है ना, आप उसको एकदम कम डाउन कर सकते हैं अगर आपको ये सारी पावर आपके हाथ में मिल जाए। मगर इसमें एमएलए की पावर आपको खत्म करनी पड़ेगी, बहुत कम करनी पड़ेगी। और जो लोकल लेवल पे पुलिस है, 8 बजे के बाद तो यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं जो पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करवा सकती, होपफुली नो नॉट वन। तो उसके लिए क्या होगा कि उसको आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल करें उस छोटे से बॉडी के लिए। तो इस तरह से ये छोटे लेवल पे जो करप्शन है एकदम कम हो जाएगा और बड़े लेवल के लिए आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। Now we have to worry about corruption at higher level, which is what is eating the country. अभी स्विफ्ट एक्शन एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वो कंसेप्ट ही नहीं है इंडिया में। सबसे पावरफुल, सबसे रीच, सबसे इन्फ्लुएंस लोग करप्शन करते छूट जाते हैं। दोनों पार्टियों में इतने करप्ट अभी पॉलिटिकल एग्जिस्टिंग नेता है, 20 साल 30 साल 40 साल तक केस चलता रहेगा तो हायर लेवल करप्शन कैसे कम होगा? We have to appoint more judges, open more courts. So many pending cases are lying, lakhs and lakhs of cases are lying in the courts. और जो भी है वो अनअफोर्डेबल है, जस्टिस इज अनअफोर्डेबल। सो बेसिकली स्वराज मॉडल लाके हमको स्विफ्ट एक्शन लेना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट गारंटी करनी पड़ेगी, तभी हायर लेवल करप्शन कम होगा। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। कांग्रेस ने 10 साल पिछले रूल किया है तो उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन किया, लेकिन एक बात ना भूलिए कि जब कांग्रेस ने करप्शन किया तो उस समय अपोजिशन में बीजेपी थी। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी कुछ नहीं किया। पार्लियामेंट में आते हैं, हल्ला करते हैं, लेकिन क्या एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज कलमाडी भी बाहर है, राजा भी बाहर है, सारे लोग मौज ले रहे हैं। बीजेपी ने कौन सी एफआईआर फाइल की है शीला दीक्षित के अगेंस्ट या रॉबर्ट वाड्रा के, किसके अगेंस्ट? कुछ भी नहीं किया। ये लोग, बीजेपी हैज बीन फेलियर एज एन ऑपोजिशन, and if AAP comes to opposition, we will redefine the concept of opposition party. मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगा, जो बीजेपी के लोगों को स्वाभिमान फिर से रीडिफाइन करना होगा, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में पार्लियामेंट में अटैक हुआ। You get a second chance. The time is up. Sorry. So you get a chance. You can complete your question when you get a next chance instead of answering this particular question. It goes to BJP. Time starts now. करप्शन इस शब्द को उच्चारण करने में भी मन को तकलीफ होती है। कैसा देश है जिसके अंदर जीवन का जो मूल्य था वो ईमानदारी के ऊपर आधारित था। जीवन का एक ही आधार था कि ईमानदारी। आज पिछले 60 वर्षों का जो शासन काल है, 65 वर्षों का, अधिकांश समय तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश को रूल किया है। और आप देख रहे हैं कि जैसा जो करप्शन जो है, उस करप्शन को दूर करने के निमित्त जितने भी कानून हैं, वो कानून एक तरह से इनअफेक्टिव हैं, क्योंकि जो करप्शन करते हैं वो करप्शन करने वाले लोगों के ऊपर के बड़े लोगों के साथ संबंध रहते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, अभी देश के 10 साल में जितने भी केसेस हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसको एक तरह से अनसुना किया। पार्लियामेंट के अंदर इतनी बार प्रोटेस्ट हुए, उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और वो लगते थे कि नहीं उसमें तो कुछ हुआ नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो इस प्रकार जब एटीट्यूड रहता है तो जिसको बोलते हैं दे एक्चुअली एनकरेज करप्शन। तो प्रश्न उठता है कि करप्शन कम कैसे हो सकता है? करप्शन कम होने का एकमेव आधार उस प्रकार की नीयत चाहिए। जब नीयत ऐसी रहती है, जिसका जीवन ऐसा रहता है, जैसे गुजरात के चीफ मिनिस्टर का बात करता